सो गुड मॉर्निंग पीपल। मेरी शक्ल टड़ा दिख गई अब। सो गुड मॉर्निंग ऑन टुडे इट्स डे 233। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया एंड डे 233 है। खिड़की बंद कर रहा हूँ, धूप बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं आनी चाहिए, कतई नहीं आनी चाहिए। क्या बनाए? जलजीरा जूस। अभी हम जलजीरा जूस बनाएंगे। तो कुछ क्लासेस वगैरह चले थे तो अभी पौज़ा मिल रखा है। लेट्स वेट, लेट्स ईट एंड ड्रिंक समथिंग एंड देन कुछ ह्यूगियन के बारे में ही जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा है। इस हफ्ते वही टॉपिक्स रहेंगे, तो जो आज पढ़ाया गया बताएंगे। मिलते हैं जल्दी। Guys, it's actually getting really hard for me to record with the GoPro because थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स गेटिंग हॉट एंड देन बंद हो जा रहा है। तो एनीवेज आई कम टू द अदर टॉपिक। देन नाकमिटाक वी टॉक्ड अबाउट बेड, हाउ डू वी properly make a bed, okay, and how, like, what is the procedure. So the first thing, obviously, you need to disinfect your hand and then wear gloves. Vorbereiten alles, also wir müssen alles schon vorbereiten, also full form of the verb. I hope you're getting it. Anyways, in short, we learned about bed. So Kursen Ablaufplan zum Betten richten. How would you actually do the bedding? So that we learned. And vorbereiting, we need to prepare the materials. Ich richte die Materialien hier. Ich benötige zum Betten richten Schutzkleidung, ein paar normale Handschuhe, Bettwäsche, ein Spannbettlaken, ein Stecklaken, ein Bettdeckenbezug, ein Kopfkissenbezug, Hygiene, also Desinfektionstücher oder Wipes für Matratze, Waschsack, Abwurf, genau, Abwurf, Ablagestuhl oder Ablagefläche am Bettende für Decke oder Kissen, bla 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 bla. In short, because when I just go through it, a lot of people might not understand, so I would just recommend how to make a bed, proper bed in German, and basically learn all the vocabs in German. And once you're done, then you can easily learn Handdesinfektions, Abziehen, Matratze und Laken, Stecklaken und Beziehen und Abschluss, bla 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 bla. Also, wichtig ist, Bettlaken, also Betten ist quasi einfach, 2 Minuten, I'll just, moment. The other topic that we studied was about isolation. How do we say isolation in German? Isolation. Okay, Isolation. Isolierungsarten. Isolierungsarten, Standard Isolierungs, strikte Isolierung und Umkehrisolierung, Protective Isolierung oder Reversing. Immunosuppressive. Also, what is actually isolation? Isolation is actually when patient, they have some sort of disease or a condition which may infect the other people. So that is why, just to avoid that, we need to isolate the patient in one single room. So here it's like, if the patient has diarrhea or he vomits, diarrhea, Durchfall, vomit, erbrechen, है ना. तो if the patient has Durchfall oder erbrechen, muss isoliert werden. Warum? Damit andere Patient nicht infizieren können. Okay, einfach. So, was sind meldepflichtige Erkrankungen? Welche Maßnahmen bei ISO-Patient beobachten? Ein Schild an der Tür des Patienten an ISO, informieren Patient, stellen Schutzkleidung. Okay, so what we studied was, once a patient is diagnosed,
that he has a certain Erkrankung, certain disease that might affect the other people or us or the other patient. So how do we need to, what is the actual process to formulate this? Okay, so it's basically you need to, oops, GoPro. So there are certain steps that you need to follow, that Einstiel an der Tour des Patient, okay. And so you need to hang a shield on the front of the door, so that whoever goes in can actually look at the shield and know, okay, the patient is actually isoliert, and where we have to use this protective Kleidung, है ना, दिस Schutzkleidung, जैसे ब्रिले हो गया, है ना, क्या बोलते, किटल हो गया, और क्या बोलते, कैप हो गया, ब्ला ब्ला, ग्लव्स वगैरह सब चीज़ हो गया. तो ये भी जो क्या तो इंग्लिश में क्या बोलते, EPPR, पर्सनल प्रोटेक्टिव, पर्सनल PPR, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लाइडूम, इंग्लिश में क्लाइडूम तो जर्मन में होता है, भूल गया मैं. बट शुट्स क्लाइडिंग जो होता है जर्मन में, आपको पता है, तो उसको हमें पहनना पड़ता है ना. अब फिर क्या तो पेशेंट को फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है. सेकंड स्टेप इज वी नीड टू इन्फॉर्म द पेशेंट and Fisteln Schutzkleidung, or and then we also need to place everything outside the patient's Zimmer, patient room, patient's Zimmer, that whoever goes in, he actually has already bereits schon bereitet, है ना, कि जो भी ज़रूरत है वो ऑलरेडी दरवाजे के सामने रखा रहता है. सारा चीज़, ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, पूरा गाउन हो गया, कैप हो गया, सब चीज़ रखा रहता है, ठीक है. फिर Angehörigen मीन्स जो रिलेटिव्स है ना, जो उसके मेन मेंबर्स हैं, Angehörigen, उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है ना. ये चीज़ हो गया. देन वी स्टडीड अबाउट नोरोवीरुस, मोमेंट, ओके, देन वी स्टडीड अबाउट नोरोवीरुस. नोरोवायरस होता है, नोरोवीरुस, है ना. तो ये बहुत ही कातिल डिजीज़ है, जो वायरस है, ठीक है. एंड ये क्या बोलते हैं, पेट Hock ansteckende Magen-Darm-Erreger, Hauptursache für Brustdurchfall. Also बेसिकली ये मागन डार्म जो है ना, पेट, और ये कहते हैं इंटेस्टाइन, और क्या बोलते हैं, इसका पैथोजन यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं. और ये क्या बोलते हैं, जो भी ये लूज मोशन वगैरह है, इसका कारण ये बनता है. और ये बहुत कॉमन होता है हॉस्पिटल्स में, ज़्यादातर आल्टनहाइम में. इट्स रियली रियली कॉमन इन दीज Einrichtungen. Also Symptome क्या होता है, Symptoms क्या होता है, Symptome. So erkennst du es bei Frau Müller. Also, das habe ich von mich geschrieben. Plötzliches schlagartiges Erbrechen, sehr ansteckend durch Aerosol. Okay, genau. Also suddenly, what happens in norovirus? Suddenly you start having Erbrechen means vomiting and all, okay. Wasiger Durchfall and watery stool you will start having. Kursnag Erbrechen, also nicht blutisch, es wird nicht blutisch sein, blutisch, blood वाला Erbrechen नहीं होगा, normale also पहले erstens Durchfall होगा, sorry, Erbrechen होगा, Erbrechen, vomit होगा. Second क्या होगा, wässrige Durchfall, watery stool होगा, which won't contain blood but it will be a normal stool, है ना. Übelkeit plus Bauchkrämpfe. Übelkeit is when you feel nausea, okay. No, when a patient has nausea, das bedeutet Übelkeit. Das why, also das nennt man as Übelkeit, है ना. Und Bauchkrämpfe, Stomach cramps होंगे von Erbrechen. Also warum wird der Patient Bauchkrämpfe haben? Wegen Erbrechen, weil schon viel erbrochen ist. Deswegen, okay. Und Koliken im ganzen Bauch. Also बेगलाइटिन सिम्टम में क्या होता है, बेगलाइटिन मतलब अकम्पनी क्या करता है, और कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो अकम्पनी करते हैं. हो गया Kopfschmerzen हो गया, Gliederschmerzen हो गया, leichtes Fieber हो गया. फिर क्या है, Abgeschlagenheit,
Wichtig ist Inkubationszeit. Also Inkubationszeit क्या होता है? जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जर्म्स का, है ना, एरेगर जो होते हैं, एरेगर है ना, उनका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है उनका होता है 6 to 50 hours. 6 bis 50 Stunden. Also 6 to 50 hours के बीच में ये पूरा तबाही कर सकते हैं, है ना. इस बीच में ये पूरा स्टेशन को, मतलब 1% से पूरा जितना गांज स्टेशन है सबको वो कर सकता है, क्या बोलते हैं, इन्फेक्ट कर सकता है ये. Now let's come to the other point, Übertragung. What is Übertragung? How it is transferred from one patient to another patient. Okay. Warum es so schnell geht, है ना? Warum übertragt es sehr schnell? Why does it really transfers from one patient to other patient, or from one person to other person really quick? Because it is fecal, oral and trophin infection, because it can easily transfer from potty होता है ना, potty से आराम से ट्रांसफर होता है, एंड ओरल से भी हो सकता है, एंड जो इसका ट्रॉफिन होता है ना, इसके जर्म्स वगैरह रहता है, वो कहीं से भी उड़ सकता है यार. Schmier Infektions Hauptweg. Also जैसे बोलते हैं ना कि या तो कि पसीने होते हैं, क्या बोलते हैं, और जैसे स्टूल होता है, पसीना हो गया, एयर ब्रोकनेस हो गया, वॉमिट हो गया, है ना, हैंड हाथ में वो कुछ कर रहा होगा, वो हाथ से किसी को मिला लेगा, या फिर जैसे मान लो कोई बटन वाला जगह है, बटन दबा देगा तो दूसरा पर्सन आएगा, बटन खुलेगा, दरवाजे का वो हैंडल है ना, क्नोब है, उसको पकड़ के पेशेंट को कर देगा, हम जाएंगे, हमने पकड़ के दरवाज़ा खोला तो हमें ईजिली आ जाएगा ये, है ना, ये फैल जाएगा. ठीक है. Permeation fliegen waren bis 2 Meter weiter. Okay, once someone sneezes, है ना, तो वो कम से कम 100 मीटर तक, इतना दूर तक आराम से वो स्नीज के साथ फैल सकता है. ठीक है. फिर I won't just read everything. I'll just skip this. Okay, extreme unsteckend nur sind. Okay, the important thing is also this, that extreme unsteckend. It is really extreme because it only needs 10 to 100 viren as of viruses. So only 10 to 100 viruses can actually cause a problem. But in 1 gram stool, here malzu, okay, here malzu, in 1 gram stool there are about 1 million वायरस. इन 1 ग्राम स्टूल, 1 ग्राम पॉटी, 1 ग्राम पॉटी में 1 मिलियन क्या तो वायरसेस होते हैं, एंड ये इन्फेक्शन करने के लिए 10 से 100 वायरस काफ़ी होता है किसी एक इंसान पर ये इन्फेक्शन फैलाने के लिए. तभी इट्स रियली ईजी फॉर द ट्रांसमिशन. ओके. थेरेपी क्या है? एज गिफ्ट काइंड मेडिस गेगन दिस वीरूस. ठीक है. थेरेपी में क्या है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है ना. ग्राउंड रेगल क्या है? न्यूरोवायरस विड निस्ट behandelt, ट्रीटेड नहीं होता है, behandelt, मन behandelt दी सिम्टोमे. न्यूरोवायरस is actually not treated. The treatment is only for the symptoms that the patient is having. ओके. zum Beispiel फ्लूजिस्काइट है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट दो, उसे पीने के लिए कुछ ना, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, लूजिंग हो गया ना. ट्रिंक प्रोटोकॉल होता है. ट्रिंक प्रोटोकॉल मतलब पेशेंट का वो होता है कि भाई कितना पी रहा है, कितना क्या है, वो बियोबैक्टन करना पड़ता है ना. सिम्टोमाटिश नूर नाक एयर्सलिशर अनऑर्डनुम. ये बहुत आएगा कि भाई जब तक एयर्सलिशर अनऑर्डनुम नहीं आ रखा है तब तक नर्स कुछ कर नहीं सकती है. इसका मतलब होता है जब तक डॉक्टर अपने लिख के कुछ देगा नहीं, जब तक कि डॉक्टर के कुछ वर्ड्स नहीं हुए कि हाँ भाई तुम ये चीज़ कर सकते हो, वो लिख के दे देगा. Once you've received the unordnung, Erzlicher Anordnung जब तुम्हें मिल जाएगा, then you start doing the other things. ठीक है. Kind antibioticum because कोई ऐसा कुछ दवाई नहीं है जो इसके अगेंस्ट में चल पाए, है ना. Weakness gegen virus, ये एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट नहीं चलता. बैक्टीरिया के अगेंस्ट चल जाएगा, दूसरे के अगेंस्ट चलेगा, बट वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक नहीं चलता. खाने डूर्शवॉल स्टॉपर, है ना, और कोई डूर्शवॉल स्टॉपर भी नहीं देना है. जैसे मतलब कि पॉटी आ रही तो उसको दे दिया कि भाई दवाई ले ले, पॉटी रुक जाएगी, नहीं. और दूसरी चीज़ क्या है? इसोलेशन, आइसोलेट करना है, और ह्यूगिन मेंटेन करनी है. ठीक है.
फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है वो सब हमने देखा, क्राइस ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बंदा मर भी सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ आई हैव जस्ट एक्चुअली गिवन यू अ brief information about this topic, and you can just go through your ChatGPT or whatever it is. Learn everything in German, especially learn the vocabs in German, because when you start having these classes, it will be easy for you to understand what's actually going on, you know. Don't focus on the major disease condition or at worst. Focus on focus on vocabs. When you know the vocab, you'll actually easily understand everything. So this is it, and we'll meet tomorrow, day 234, I guess. Also, bis morgen. Tschüss. So guys, we are going to MediaMarkt to buy Ventilator und WLAN. Wir müssen WLAN kaufen und deswegen unbedingt. So we are going to MediaMarkt and we need to buy a fan and Wi-Fi. तभी के लिए हमें ऊपर जाना है. सो गाइस, हम फिर से जगह भूल गए, मतलब बस भूल गए. कितना थर्ड टाइम नहीं, हम तीसरी बार जा रहे हैं वहाँ पर. तीसरी बार हम क्या बोलते हैं, बस का डायरेक्शन भूल गए, क्योंकि कभी बस कहीं से जाती है, कभी कहीं से आती है, तो पता नहीं चल पाता. एनीवेज, हम बीच में बस से उतर गए, दूसरा बस स्टेशन से वापस जाएंगे, फिर वहाँ से दिखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा चलना भी पड़ेगा. बड़े की धूप तगड़ी है, और धूप के लिए ही जा रहे हैं हम, धूप को सुलझाने के लिए, धूप के सुलझाव के लिए. कितना मिनट बचा है इसमें? 3 मिनट. चलो वेट करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में. दोस्तों, ठंड के टाइम पर थोड़ा बहुत हम गोरे हुए थे, धूप नहीं था, थोड़े बहुत गोरे हुए थे, और अब गर्मी शुरू हो चुका है. धूप में चल चल के वापस जिस कलर से हम इंडिया से आए थे, कलर लेके, सेम कलर में हम वापस अब अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएंगे. अपने औकात में आ जाएंगे हम. इतनी भयंकर गर्मी है लिटरली. चलो कोई नहीं, दिस स्ट्रगल इज़ रियल. सो गाइस, वहाँ तो चल के आए थे, उधर गए MediaMarkt में, और अब जाके बस के लिए वेट कर रहे हैं. एंड उधर MediaMarkt है, ये वहाँ से हमने वाईफाई का सामान बोल रहा हूँ, वाईफाई के लिए रजिस्टर कर लिए, सब चीज़ हो गया है. के फिर 10 डेज़ के अंदर मतलब वाईफाई हमारे घर पर लग जाएगा, है ना. तो इसके बारे में किसी को पूछना हो तो बताना, तो मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में कैसे क्या है. चलो अभी बस के लिए वेट करते हैं, होपफुली बस आ जाए जल्दी से, फिर आपसे मिलते हैं गाइस. कोई बस नहीं है गाइस यहाँ पर. जो बस लिखा हुआ आ रहा था वो बाद में कट चुका है, कैंसिल हो गया है वो. हमें 1.5 किलोमीटर चलना है जहाँ से हम चल के आए थे. अब वही स्टेशन हमें चल के वापस जाना है. चलो खूब चलो गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में. सो भाई, घर पहुँच गए, एज इन पहुँचने वाले. नॉर्मा गया, नॉर्मा से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, दूध वगैरह जो कुछ चीज़ें. ये होता है कि हर तीसरे दिन हाँ, आजकल हम आइसक्रीम ये शेक वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है दूध वगैरह, तो वो सब भी ख़रीद लिया. और अभी जाऊँगा घर, थोड़ा अपना काम करूँगा, पढ़ाई करूँगा, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो करूँगा. थोड़ा सा व्लॉग एडिट हो रखा है, पोस्ट नहीं कर पाया था मैं कल, तो अब जाके मैं इवन क्लास के बाद तुरंत हम निकल गए थे. अभी भी क्या बोलते, फिर आ रहा हूँ बिजी. फिर आज है डॉइचलैंड का मैच, है ना. इक्वाडोर के साथ है कि किससे आता है, तो
फिर वो देखने जाऊँगा मैं, दोस्त लोग से बात होगी जो स्पेन वाले दोस्त लोग हैं, और भी पता नहीं कौन कौन आएंगे यहाँ पर। तो ऐसे तो आते तो बहुत सारे हैं, बट खास जानने वाले जो मेरे खास मतलब यहाँ पर दोस्त बन रखे हैं वो लोग। तो मैच भी देखने जाना है, तो उससे पहले पहले ख़त्म करना है और 9:30 बजे यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि 10 बजे मैच है। तो 9:45 पर दोस्त लोग आ रहे हैं, तो पंक्चुअलिटी मैटर्स प्रो। तो चलते हैं घर, तैयार तुर होते मतलब फ्रेश अप होते हैं और क्या बोलते हैं, काम कुम करता हूँ और मिलता हूँ आपसे बाद में।